جب میرا یسوع آپ کا یسوع زندہ ہوا ساری کائنات جگمگا رہی تھی، ساری کائنات کی مخلوقات گنگنا رہی تھی، آسمان ہر ایک مخلوق خداون کے نام کو جلال دے رہی تھی، اپنے خداون کا شکریہ ادا کریں گے کیونکہ ہمارا خدا اور خداون زندہ جلالی اور معتبر خدا اپنی قدرت سے بڑے بڑے کام۔ لکھا متی کے انجیل کے 27ویں باب میں اور اس کی 45ویں آیت میں، اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ اب غور طلب بات ہے کہ جس لمحہ یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دے رہے تھے دوپہر کے قریب 12 بجے، اور جب جس کو ہم کفارے کا کلمہ کہتے ہیں، چوتھا کلمہ ہے، یہ چوتھے کلمے میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے 12 سے 3 بجے تک مکمل اندھیرا پوری دنیا میں چھا گیا۔ ایک علاقے ایک ایریے کی بات نہیں تھی، بلکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سن 33 میں جب مختلف مصنفین نے یہ کیا تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن جس لمحہ یسوع مسیح صلیب پر جان دے رہے تھے، جب دوپہر میں اندھیرا چھا گیا تو سارے پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کو لوٹ گئے، جنگل کے تمام جانور جو تھے وہ باہر نکل آئے جنگلوں سے، ان کو لگا کہ تاریکی چھا گئی ہے اور تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو بھاگ گئے، کیونکہ اس قدر ہولناک تاریکی جو ہے وہ دنیا میں چھا گئی۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے اسی تاریکی میں یسوع نے بلند آواز سے آخری کلمہ بولا، اور پھر لکھا ہوا ہے یہ کہہ کر اس نے اپنی جان دے دی۔ اندھیرا چھا گیا، اور کیا خوبصورت بات ہے کہ جس لمحہ یسوع مسیح نے جان دی سورج غروب ہو گیا۔ جس لمحات میں یسوع مسیح نے اپنی جان، اپنی روح اپنے باپ کے حوالے کی، رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ لیکن کیا خوبصورت سٹیٹمنٹ روح القدس نے یوحنا کی معرفت لکھوائی، ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا، کیا لکھا ہے، قبر پر آئی۔ اب سارے لوگ یہاں پر آج سن رائز عبادت میں آئے ہیں، یعنی سورج کے طلوع ہونے کی کون سی عبادت میں آئے ہیں؟ عبادت کا نام کیا ہے؟ سن رائز کا کیا مطلب ہے؟ طلوع آفتاب۔ کیا نام ہے جی؟ طلوع۔ ہم کسی طلوع آفتاب کی عبادت کرنے نہیں آئے، صبح کے لمحات میں ہم اگتے ہوئے سورج کی پرستش کرنے نہیں آئے، ہم صبح نکلتے ہوئے سورج کو ہم مبارک کہنے نہیں آئے کہ آؤ جی اندھیرا بھی ابھی چھایا ہے، نہیں، ہم کسی بھی دنیا کے سورج کی بات نہیں کر رہے، ہم تو بیسیکلی بیٹے کے طلوع ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ خدا کا بیٹا جب قبر میں سے باہر آتا ہے تو بیسیکلی جس کا لمحہ سورج طلوع ہوتا ہے، اس لمحہ بائبل بیان کرتی ہے قبر میں بھی ایک آفتاب صداقت تھا، جس کے بارے میں لوکا میں لکھا ہے وہ عالم بالا کا آفتاب ہے۔ اور پھر بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ سن رائز، طلوع آفتاب کی عبادت، سن رائز سروس، سورج کے طلوع ہونے کی عبادت۔ اور بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ ابھی اندھیرا ہی تھا کہ عورتیں کہاں پر آئی؟ قبر پر۔ یہ سورج کے طلوع ہونے کا مطلب کیا ہے؟
बेसिकली सूरज के तलू होने का मतलब है एक नए दिन के आगाज की बात हो रही है, किसी नई चीज के उगने की बात हो रही है। आफताबे सदाकत, सनराइज का मतलब है एक नया अज़म, एक नया विजन, एक नई हिम्मत, एक नई ताकत, एक नई रोया और एक नए आगाज की बात हो रही है। जिस दिन यीशु मसीह ने जान दी वो गुरूब आफताब था, लेकिन जिस लम्हा यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ वो क्या है? वो तलुए आफताब है। मेरे अजीज प्यारे भाई और बहनों, ये कई दफा लोग कहते हैं यार ये कौन सी को नई बात है, मुर्दे बड़े जिंदा हुए पहले भी, तो यीशु मसीह भी जिंदा हो गया, तो इसमें कौन सी अजीब सी बात है? बाइबल मुकद्दस में कुल 9 मुर्दे जिंदा किए गए हैं। कितने? 9 मुर्दे बाइबल मुकद्दस में, न्यू टेस्टामेंट में, ओल्ड टेस्टामेंट में 9 मुर्दे जिंदा हुए हैं। लेकिन इन 9 मुर्दों में और मेरे यीशु मसीह में क्या फर्क है? क्या दुनिया में जितने भी मुर्दे अब तक जिंदा हुए हैं, क्या यीशु मसीह उनसे डिफरेंट है? क्या यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना उससे अलग है? हां जी, अलग है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है जितने मुर्दे भी बाइबल मुकद्दस में जिंदा किए गए उनको किसी ने दुआ करके जिंदा किया। एलिया ने कैसे जिंदा किया? एलिया लड़के के ऊपर फिसल गया और लिखा है एलिया ने दुआ की तो मुर्दा क्या हो गया? जिंदा हो गया। अलीशा ने दुआ की, मुर्दा क्या हो गया? जिंदा हो गया। अलीशा की हड्डियों के साथ मुर्दा टकराया, क्या हो गया? जिंदा हो गया। यीशु ने लाजर को क्या कहा? कब्र में से बाहर आया, क्या हुआ? जिंदा हो गए। इन सबको किसी ने जिंदा किया दुआ करके, शिफायत करके। लेकिन आइए जरा निकालिए मेरे साथ मत्ती की इंजील 28वां बाब निकालिएगा। मत्ती की इंजील 28वां बाब आयत नंबर 5 जरा पढ़िएगा। क्या फर्क है यीशु मसीह में और दूसरे मुर्दों के जिंदा होने में? निकालिए मत्ती की इंजील 28वां बाब 5वीं आयत से पढ़िए, क्या लिखा है? फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जी, जो मसलूब हुआ था, वो यहाँ नहीं है। सुनिएगा, वो ये पंखे की आवाज से माइक में डिस्टर्ब हो रहा है। क्या लिखा है? सुनिएगा, वो यहां नहीं है। आगे जरा बड़े ध्यान से बस सुनिएगा, क्योंकि क्या लिखा है जी? वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के क्या लिखा है? अपने कहने के जितने मुर्दे पहले जिंदा हुए उनको किसी ने जिंदा किया दुआ करके, शिफायत करके। लेकिन ये जिंदा जो हो रहा है, लिखा है अपने कहने से जिंदा हुआ है। उसने कहा था हैकल को ढा दो, मैं 3 दिन में क्या करूंगा? इसे फिर खड़ा कर दूंगा। उसने फरमाया मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और इसे वापस है। इससे पहले कभी किसी मुर्दे ने नहीं कहा था मैं मर जाऊंगा और जिंदा हो जाऊंगा। ये बात, ये कौल सिर्फ यीशु मसीह का है, अपने कहने के मुताबिक। और जो कहता है आसमान टल सकता है, जमीन टलेगी, लेकिन उसके मुंह के अल्फाज, कलाम, कौल कभी नहीं टलता। इसलिए जब सुबह सुबह यीशु उठा तो किसी ने उठाया नहीं है। हाँ, कई दफा लोग ये भी समझते हैं और फरिश्ता आया, उसने कब्र पर से पत्थर क्या कर दिया। और किसी राइटर ने लिखा, वो कहता है यीशु अंदर वेट करन दिया सी कि फरिश्ता फटाफट आए ते पत्थर नु की करे ताकि मैं की करा। नहीं, पत्थर यीशु के लिए नहीं हटाया गया था आपके लिए, मेरे लिए, औरतों के लिए, कि आओ अंदर आके देख लो, वो यहां नहीं है। यहीं रखा गया था, लेकिन अब यहां पर ये नहीं है। सो बाइबल मुकद्दस बयान करती है, पहली बात यीशु मसीह का मुर्दों में जिंदा होना क्यों फर्क है? क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक। दूसरी बात, जितने मुर्दे भी
यीशु से पहले या बाद में उसकी खिदमत में वो जिंदा किए गए, गौर करें, जिंदा किए गए, लेकिन दोबारा मरने के लिए जिंदा किए गए। लाजर जिंदा हुआ, क्या ख्याल है? बाद में क्या हुआ? मर गया। यार की बेटी, क्या ख्याल है? जब लाजर कब्र में से बाहर आया तो लिखा है ना कि वो कफन के साथ आया। क्यों कफन ना लेके आया ऐसे? हाँ जी, क्योंकि उसे पता था मैंने दोबारा, लेकिन तो यीशु कब्र से बाहर आया, मेरे पास है, जब यीशु कब्र में से बाहर आया तो कफन कुफन पा के नहीं आया, बल्कि कफन रुमाल ठप ठुप के प्रेस करके रखा है। क्या कैसी बात है? लोगों ने कहा जी लाश चोरी कर ली गई है। अब यहां पर लिखा है मत्ती की इंजील में 28 की 11 पढ़ेंगे, लिखा है जब वो जा रही थी तो देखो पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहनों से बयान किया और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा, क्या लिखा है, रुपया कदा दे लगे नून, गौर करना जरा, रिश्वत, पैसा, मुंह बंद कर लेना या मुंह से कोई गल पा लगे ने, रुपया देकर कहा ये कह देना कि रात को जब हम क्या लिखे, लो जी सिपाहियों को पैसे दिए जा रहे हैं कि लो जी है तो हम मुनादी करनी है, पैसे दे के तो हम मुनादी करनी है। तो की मुनादी करनी है? जब हम रात को क्या कर रहे थे, हालांकि रोमी हुकूमत में सिपाहियों का सोना, ड्यूटी पर सो जाना मौत थी, सजाए मौत होती थी। उन्हें क्या, रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे, और अगर ये बात हाकम के कान तक पहुंची तो हम उससे समझाकर तुमको खतरे से क्या करेंगे। जे यह गल किनू पहुंच गई कि भाई बंदे ड्यूटी ते ड्यूटी किदी देंदे ने, क्योंकि अंदर बड़ा बड़ा खजाना पिया सी, अंदर हीरे जवाहरात पे ने, ड्यूटी की थी। और मैं कई दफा पढ़ के बड़ा रहता हूं, ये पहला कब्रस्तान होएगा ते पहली कब्र है जिथे पैरा बैठा था। डर कद है कि मुर्दा भज ना जाए। कभी आपने किसी कब्रस्तान पर या कब्र पर देखे सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए एन पिस्तौला फाड़ के? क्यों जी? ऐ जी बंदा जो ना इतों बाहर ना है। मेरे यीशु दे मरे दी दहशत वेखो कितनी है। जिंदा तो जिंदा, वो मर गया है तो फिर भी इतनी दहशत है। और दहशत पता किस बात की थी? वो कहते हैं हमें पता है, उसने कहा था मैं क्या करूंगा। वो जानते थे कि जो कहता है वो करता है। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, बस उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया। और क्या है, ये बात आज तक यहूदियों में पैसे दे के गल मशहूर की करवाई ने कि यीशु मसीह की लाश की हो गया। तुझे तो बगैर पैसे तो कह रहे हो हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। क्या कह रहे हैं जी? आप तो पैसे दे के हलवा पूरी खिलवा के भी कह रहे हैं बोलो हालेलुया। वे लो ओ पैसे दे के कहने के दसियो लाश की हो गई है, आई पैसे दे के पैसे ला के हलवा पूरी खुआ के कहांगे हालेलुया बोलो यीशु। नहीं निकलता पाया थोड़े मुंह च, है ना। और पैसे लैके कहने के लाश चोरी हो गई है। और आप लोगों के पास तो हकीकी सच्चा पैगाम ही आया है कि वो यहां नहीं है। जाओ भाइयों से कहो वो मुर्दों में से क्या है। सो जितने मुर्दे भी इससे पहले जिंदा हुए फिर मर गए, लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो जब जिंदा हुआ है तो कभी ना मरने के लिए, वो अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहने के लिए जिंदा हुआ है। हालेलुया। कभी 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 मैं भी मर जाना है, इथों किसी ने भी नहीं रहना। कोई दसो जी, कहो जी पैसा मैं ते अमृत जल पी के आया। केड़ा मैं पी के आया? मैं ते भाई साहब अमर हो गया, मैं ते फलाना जादू किया। नहीं नहीं, जो जितने भी यहां पर लोग आए हैं आप सबको मरना है।
और एक दिन सब ने मरना है, लेकिन यीशु एक बारी मरिया है तो अब दोबारा नहीं मरने का। हालेलुया। जितने भी मुर्दे से पहले जिंदा हुए वो जिस बदन में मरे थे उसी बदन में जिंदा, लेकिन है वाहिद शख्स से जिस बदन में मरा जिंदा उस बदन में नहीं हुआ, बल्कि वो जलाली बदन में जिंदा हुआ है। वो बदन जो बंद कमरों के अंदर दरवाजों को क्रॉस कर जाता है, जलाली बदन में। इसलिए ये हमारे लिए गुड न्यूज है। जो असी मरांगे ते मरांगे असी ए बदन च, लेकिन जो जिंदा होवांगे ते जिंदा केड़े बदन च? जलाली। और आपको आपके जिंदा होने का जन्मदिन मुबारक हो। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। अब गौर करें, यीशु मसीह जिंदा अपने वास्ते होया सी, मरिया के नास्ते ते जिंदा के नास्ते होया? बोलो बोलो, कि नास्ते? साढ़े वास्ते। उसे अपने लिए जिंदा होने की कोई है थी ना, उन्होंने मरन की लोड़ सी ते ना उन्होंने जिंदा होने की लोड़ सी। क्यों? अगर वो मरा, अगर वो पैदा हुआ ही तो किस लिए? आपके लिए। मौत से किए आपके लिए, सजा उठाई किसके लिए? मर गया, दफन हुआ और जिंदा हुआ वो भी किस लिए? तो भाई ये सारा कुछ साढ़े वास्ते है जे। ये सारा कुछ जो भी खुदा का कलाम बयान करते वो हमारे वास्ते। चौथी बात, जितने भी मुर्दे अब तक जिंदा हुए, कभी भी कोई मुर्दा जिंदा होकर आसमान पर नहीं गया। ये वाहिद जिंदा होके 40 दिन तक नजर आंदा रहा है। और कभी आपने गौर किया, जिस दिन यीशु जिंदा हुआ सबसे पहले पिलातुस के पास गया। अरे मैं जाके दसा, ओए तो मनो वेला ते मैं आ गया हूं। ना पिलातुस के पास, ना सिपाहियों के पास, ना यहूदियों के पास, किन्ना दे कोल गया है? किन्ना दे कोल गया? ओए अपने दे कोल गया है। हालेलुया। ये एजाज है, यीशु मसीह ने अपने जिंदा होने की बात अपने दुश्मनों को नहीं, अपने प्यारों को बताई है। जाओ ने जाके कहो मैं अपने कहने के मुताबिक जी उठाऊं। ये एजाज है आपके लिए। वो तो मिलता जे पे आके आपसे मिलना चाहे। दुश्मन की कोई दुश्मन छोड़ दे, लेकिन यीशु जहां जहां भी किसी से मुलाकात की है आज भी मुलाकात कर रहे हैं। और उदों का जिंदा होया अज भी की करन डे। जितने मुर्दे जिंदा हुए आज तक कोई मुर्दा जिंदा होके आसमान पर जाके सज्जे हाथ भी नहीं बैठा। पढ़िए मेरे साथ एक हवाला, इब्रानियों का खत निकालिएगा मेरे साथ। इब्रानियों का खत, इब्रानियों का खत निकालिएगा, पहला बाब आयत नंबर 30, आयत नंबर 30वीं आयत पढ़िए। 30वीं आयत जी, क्या लिखा है? वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा जी। और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया। गौर कीजिएगा, लिखा है इब्रानियों का, आगे दूसरा वाला पढ़ेंगे 10वां बाब, इब्रानियों 10वां बाब 11वीं आयत। और हर एक काहिन, गौर करें, इब्रानियों 10वां बाब 11वीं आयत। हर एक काहिन, क्या लिखा है? बड़े बड़े ध्यान से हर रोज इबादत सुनिएगा, बड़े ध्यान से वर्ष को समझिएगा क्या लिखा है। लिखा है हर एक काहिन तो खड़ा होकर क्या लिखा है? इबादत कर। मैं यहां क्या कर रहा हूं? मैं यहां खड़ा हूं कि नहीं? अपना काम कर रहा हूं कि नहीं? और जब मैं सरमन दे दूंगा मैं क्या करूंगा? है नहीं, मैं की करांगा? एदा की मतलब होएगा कि मैं अपना काम। लेकिन गौर करें, हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज
इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजरानता जो हरगिज गुनाहों को दूर नहीं कर आंदा सकती। काहिन हले भी खलो के कुर्बानियां देन देने, हले भी बकरे ज़बा होन देने, मेंढे ज़बा होन देने, अभी भी खून बहाया जा रहा है। काहिन हर रोज खड़ा होता है, सुबह भी खड़ा हो रहा है, दोपहर को भी खड़ा हो रहा है, लेकिन एक सरदार काहिन है जो खड़ा नहीं है। क्या लिखा है, पढ़ेंगे आगे। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए, हर रोज के लिए नहीं, हमेशा, लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। लो जी, काम हो गया पूरा। हालेलुया, हालेलुया। सरदार अभी भी कुर्बानियां दे रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन इसने फरमाया लो इट इज फिनिश, मैं काम कर लिया। अगो कुछ करने की लोड़ है हूं तुहानू? मैं हाले तक खलोता था, मैं खड़ा हूं, लेकिन मेरे सारे काम यीशु करके बाप के दाहिने हाथ बैठ गए सारे। अभी आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा कि तुम यह कर लो कर लो। आपकी शिफा का काम भी क्या हो गया, निजात का, रिहाई का। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ये वाहिद शख्स है जो जिंदा होकर बाप के दाहिने हाथ बैठा है, और ये वाहिद है जिसके पास मौत आलमे अरवा की क्या है, अच्छा कुंजी लिखे है, कुंजी लिखे है कि कुंजियां किन्नियां को, हाँ जी, किन्नियां कुंजियां ਉਹਦੇ ਕੋਲ है। और कुंजी पता है की कर दी है, दो काम कर दिए। किसी को पता है कुंजियां दो काम करती है? कोई बताएगा मुझे? ताला बंद भी कर दिया ने ते ताला खोल दिया मैंने। क्या करता है? अगर आपकी जिंदगी में डेविल ने दरवाजे खोले हैं तो बंद कर देगा उन दरवाजों को, और खुदा आपके लिए बरकत के नए दरवाजे खोलेगा, आपकी शिफा के नए दरवाजे खोलेगा, आपके बिजनेस के लिए नए दरवाजे खोलेगा, आपके खानदान की बरकत के लिए नए दरवाजे खोलेगा, आपकी बहाली के लिए, आपकी शिफा के लिए, मोहब्बत के नए दरवाजे खोलेगा, और जिसको वो खोल देगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आज सुबह जैसे कब्र का मुंह खुला लोगों को दिखाने के लिए, और फिर लिखा हुआ है तब उसने उनका ज़हन भी खोला। क्या खोला? कब्र भी खुल गई, ज़हन भी खुल गया, फिर लिखा उनकी आंखें भी खोली। की खुलन दे दसोरा। नंबर 1 कब्र खुल गई, नंबर 2, नंबर 3 नविश्तों के भेद भी खुल गए। हालेलुया। लिखा है लूका 24 में, जब हमसे बातें करता था और हम पर क्या खोल रहा था? नविश्तों के क्या क्या खुला? उंगली तो दसो। कब्र का मुंह खुला, ज़हन खुले, आंखें खुली, नविश्तों के आसमान भी खुल गया। हालेलुया। होर कुछ बंद बुंद है अपना हाथ इंज करो, तुहाडे बड़ा कुछ किस्मत का ताला भी खुल गया। होरे किहे ने किन्ने मर्ज ने मेरा काम बन छड़े, हाले भी बचिया तुहाडा काम, हाले भी रोन पिटन दे, होरे किन्ने बनिया ओए उसने बंदे सारे खोल दिए। हालेलुया। इसलिए तुहानू सारियां नू हैप्पी ईस्टर, ईदे क़यामतुल मसीह मुबारक हो। आज का दिन, आज की सुबह स्पेशल डे है आपके लिए। हालेलुया। पता आपको याद है हेरोदेस बादशाह, उसकी क्या थी? बर्थडे थी। क्या थी जी? किसकी? हेरोदेस बादशाह का जन्मदिन था। लड़की नाच रही थी उसके बर्थडे पर। क्या कर रही थी? गौर ने गल सुन लीजिए आखिरी। लड़की उसके बर्थडे पर क्या कर रही थी? और बादशाह तख्त पर बैठा बड़ा महजूज हो रहा था, लड़की का डांस देख रहा था और बड़ा खुश था। ओए मेरे बर्थडे पर ये नाच कर मुझे महजूज कर रही है। कंधा कुड़िए मांग की मांगनी है कि क्या लगा?
जे एक करप्ट बादशाह एडा खुश होया है, तो गौर करो आज तुसी ओदे जन्म दिन, आज आप उसके दोबारा से जन्म लेने के दिन को मना रहे हैं, आज आप उसके जिंदा होने के लिए गा रहे हैं हालेलुया, बोले यसु। इंज दा खुश होया है, तुहानू ऐ कवे मंगो बच्चिओ तुसी अज मेरे जी उठने दिन मनान दो, की चाहिदा जे? जे करप्ट बादशाह खुश हो गया है तो तुहाड़ियां तालियां, तुहाडे नारे, तुहाडा सुबह सुबह उठ के आना, सुबह सुबह अखां सुजियां, अखां ना पता मेकअप कितल जान दिया ना पता लगन दिया है, आओ करन दे। वो आंदा है ना कि भाई वेखो किड्डी मोहब्बत ना सारे आए दे ने, तो क्या ख्याल है वो खुश होन दे तख्त ते बैठ के नहीं? आसमान पर बैठा खुश हो रहा कि नहीं कि मेरी कलीसिया सुबह सुबह निके निके काके याने लैके मोमबत्तियां फड़ के गलियां च कहन दे ने हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु। आसमानों पर आपका खुदा महसूस हो रहा है, हालेलुया। आसमानों पर आपका खुदा एंजॉय कर रहा प्रशिश को, और वो जब एंजॉय करेगा वो आपकी तकदीर के ताले खोल देगा, हालेलुया, हालेलुया। खलो जाओ अपने पैरों पे, शुक्रगुजारी करते हुए खुदा को मांगो, मांगिए खुदा से, अपने घर के लिए बरकत मांग लें, अपने खानदान के लिए बरकत मांगिए, अपने बच्चों के लिए मांगिए बरकत। ये स्पेशल दिन जे, स्पेशल डे है, स्पेशल मॉर्निंग है ये, और दिल तो दुआ करो। सिर्फ ये नहीं कहना कि बस असी आए हैं रस्मी तौर पे, दिल से दुआ करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दो या कोर्स गाते हैं, साथ में खुदावन से दुआ करेंगे। प्लीज मैं चाहूंगा इस दिन को, इस मौके को मत गवाइएगा। जानिए कोर्स गाएंगे तू मेरी सच्चाई को, हालेलुया। प्लीज अपने खानदानों के लिए, बच्चों के लिए, घराने के लिए, कारोबार के लिए दुआ मांगे, और मैं भी आपके साथ मिलकर दुआ करने वाला हूं। आपके दरमियान में आके खुदा के खुदा मेरे साथ आए, हालेलुया। आइए दुआ करें प्लीज, मेरी बेटियों, मेरी माओ बहनों दुआ करें। आप सुबह सुबह अपनी नींद को बाबा रखा सीखो रो बोरो, प्लीज अपनी जुबानें खोलिए। चर्च वक्त को मत गवाइए, आप बड़ा दिन, बहुत खास दिन है आपके लिए। अपने खुदावन से मांगिए, अपने घर के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी जॉब के लिए, बरकत और शिफा के लिए। जीसस हालेलुया, अपने हाथों को फैलाइएगा। प्रेज वर्शिप लॉर्ड, हालेलुया, जीसस हालेलुया, थैंक यू फादर। सच्चाई को सुनिए यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुनिए यहोवा, तू मेरी सच्चाई वो सुनिए यहोवा, से तुझको पुकारूं तू सुनिए खुदा, मैं तुझको पुकारूं, मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं तू सुनिए खुदावन, मैं तुझको पुकारूं, मेरा फैसला तेरे दर से हो साबित, तेरी चला लिया खुदा, फैसला तेरे दर से हो सारे, वर्शिप लॉर्ड, हालेलुया। सच को परखने पे गाने। आइए दुआ करना शुरू करेंगे। अपनी जुबानें खोलिए, अपनी जुबानें खोलिए, अपने लब खोलिए, अपने खुदा के आगे अपना फैसला रखें, अपना मुकदमा अपने खुदा के सामने रखिए। और आज सुबह वो आपके लिए बंद दरवाजे खोलेगा, आज सुबह आपके ज़हन खोलेगा, आज सुबह आपकी आंखें खोलेगा, आज सुबह कलाम के नविश्ते खोलेगा। दुआ मैंने की है, शबरा बाबा बाबा का सुखरा बाबा बाबा, जवाब तू ही है,
دشمنوں سے بچاتا رہے گا، وہ شفقت جب دکھاتا رہے گا، میری سچائی کو سنے یہوہ، جو دل کی دہائی کو سنے یہوہ، میری سچائی کو سنے یہوہ، جو دل کی دہائی کو سنے۔ آئیے اپنے گھٹنوں کے بالوں کے دوبارہ گائیں، گھٹنوں کے بال آ کر دعا کریں گے، شکر گزاری کریں، اپنے یسوع کا شکریہ بجا لائیں، اپنے یسوع کی محبت کا شکریہ ادا کریں، اپنے یسوع کی فتح کا شکریہ ادا کریں، اپنے یسوع کی وفا کا شکریہ ادا کریں۔ یسوع اپنے خداوند کا شکر بجا لائیں، خداوند یسوع کی شکر گزاری کریں، مالک تیرا شکر ادا دہائی وہ سنے یہوہ، تو میری سچائی کو سنے یہوہ، جو دل کی دہائی وہ سنے یہوہ۔ میں بے غرض ہونٹوں سے تجھ کو پکاروں، تیری حضوری میں تیرے قدموں میں جھک کر تیرا شکریہ ادا کریں۔ آج صبح تیری بارگاہ میں ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہیں، ہمیں معاف کر، ہمیں معاف کر، ہماری اعلانیہ بے وقوفیاں، غلطیاں، گناہ ہمیں معاف کر، خداوند ہمیں معاف کر۔ اے زندہ یسوع ہماری زندگیوں میں بند دروازوں کو کھولیے، ہم گناہ کے دروازوں کو بند کرتے ہیں یسوع کے نام سے، ناامیدی کی قوتوں کو، مایوسی کی قوتوں کو، گمراہی کی قوتوں کو، نافرمانی کی قوتوں کو یسوع کے نام سے بند کرتے ہیں۔ برکت کو، بحالی کو، شفا کو، فتح کو جاری فرما، ہم گناہ پر قابو پائیں، گناہ پر غلبہ پائیں، دنیا پر غلبہ پانے والے ہیں۔ خداوند رحم کرم کر، خداوند رحم کر، دعا میں نے کی ہے، دعاؤں کا میری جواب تو ہی ہے، یہوہ تجھی سے دعا میں نے کی ہے، دعاؤں کا میری جواب تو ہی ہے، تو میری طرف کان اپنا جھکا دے، میری زمین تو سن کے جائے، تو میری طرف کان اپنا جھکا دے، میری زمین تو سن کے جائے۔ جو کرتی توکل ہے تجھ پہ خدایا، تیرے داہنے ہاتھ نے ان کو بچایا، جو کرتی توکل ہے تجھ پہ خدایا، تیرے داہنے ہاتھ نے ان کو بچایا، سبھی دشمنوں سے بچاتا رہے گا، وہ شفقت جب دکھاتا رہے گا، سبھی دشمنوں سے بچاتا رہے گا، وہ شفقت جب دکھاتا رہے گا، میری سچائی کو سنے یہوہ، جو دل کی دہائی کو سنے یہوہ۔